we will continue this lesson, colonialism and the countryside. The rise of Jotdar in Bengal, especially North Bengal. So, rise of Jotdars. Jotdars were the rich peasants. Rich peasants were called Jotdars, especially in North Bengal. So, these are the rich peasants. Jotdars controlled the local trade. Jotdars controlled local trade. Jotdars were also engaged in money lending to poor villagers and money lending. So, Jotdars have strong control over the poor villagers by providing money, and they were also engaged in local trade. Land was cultivated by sharecroppers. Jotdars gave their land to sharecroppers. These sharecroppers were called adiyars or bargdars. So, Jotdars gave their land to adiyars or bargdars. These were the sharecroppers, and production was equally divided between Jotdar and sharecroppers. 50% kept by bargdars, adiyars, and 50% was given to Jotdars after harvesting. Jotdars were more effective than Jamidars, controlled over poor villages. So, ये जमींदार से ज़्यादा इफेक्टिव थे गाँव में, and control over poor villagers. Jotdars were more effective than the Jamidars in rural area, in the village area, and they controlled the poor villagers. So, registered Jamidars. Jotdar registered Jamidars to increase the Jama of the village and prevented Jamidari officials from executing duties and mobilizing riots. Many times Jotdar resisted the Jamidars when Jamidars tried to increase the Jama. When Jamidars decided to increase the revenue, then Jotdar resisted the Jamidars. Sometimes they created problem for the Jamidari officials from executing their duties and mobilize riots. So this work is also done by Jotdars. Jotdars ने जमींदारों के द्वारा टैक्स बढ़ाने की जो नीति थी उसका विरोध किया. जो जमींदारी के अधिकारी थे उनको ड्यूटी करने से रोका कई बार, और रैयत्स को भी वो मोबिलाइज करते थे. सो Jotdar क्लास इज वेरी पावरफुल इन बंगाल. ऑफिशियल्स को उनको रोका, उनको जमा और रेवेन्यू बढ़ाने से रोका. फिर हम बात करते हैं दे परचेज्ड एस्टेट ऑफ जमींदार्स. Jotdars purchased the estates of the Jamidars. Many times many Jamidari were auctioned, and these auctioned Jamidari were purchased by Jotdars. In this way, they weakened the Jamidari authority. इस प्रकार से जमींदारों को कमजोर करने में Jotdaroं का हाथ रहा, उनका सपोर्ट रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. They were called हौलदार्स. उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था. हौलदार्स कहा जाता था, घाटीदार्स उनको कहा जाता था, और मंडल्स भी कहा जाता था. So Jotdars were known by different names. They were called Howdars, they were called Ghatidars, they were called Mandals. So Jamidars and Jotdar, these are the two powerful groups in Bengal. Now our next topic is Jamidars resist. जमींदार ने किस प्रकार से रेजिस्ट किया, तो ये देखते हैं. फिक्टियस सेल ऑफ द जमींदारी. जमींदारी की फिक्टियस सेल की गई.
राजाज एजेंट्स मैनिपुलेटेड ऑक्शंस, राजा के एजेंट्स ने ऑक्शन को मैनिपुलेट किया। जमींदार से सर्कमवेटेड डिस्प्लेसमेंट, जमींदार को अटैक, समटाइम्स दे वर अटैक्ड बाय लठियाल्स, कई बार उनके ऊपर लठियाल के द्वारा अटैक किया गया। रैयत से रजिस्ट्रेड एंट्री ऑफ द आउटसाइडर्स, बाहर से कोई व्यक्ति आता तो उसका विरोध करते रैयत। सो फॉर्स टू मेक रेवेन्यू रूल्स फ्लेक्सिबल, और आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू रूल्स को फ्लेक्सिबल बनाया गया। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से जमींदार ने रेजिस्टेंस किया। जब जमींदारों की जमींदारी को ऑक्शन किया गया तो उन्होंने कैसे सरकार के खिलाफ, तो पहला तरीका उन्होंने यही अपनाया कि जमींदारों ने अपनी जमींदारी की फिक्टिया सेल करवा दी अपने एजेंट और सर्वेंट के द्वारा। दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया, राजा के जो एजेंट्स थे वो मैनिपुलेट करते थे ऑक्शन को। एक बार ऑक्शन में ज़मीन को खरीद लिया, बाकी जो बिडर्स होते हैं बोली लगाने वाले उनसे ज़्यादा बोली लगाई, खरीद लिया, लेकिन ओवर जो पेमेंट पर खरीदा, ओवर रेंट देने की बात कही, उसमें से सारा पेमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया। मजबूर होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा उसको से रीसेल करती, दोबारा वो खरीद लेते, फिर उसमें से जो ज़्यादा जो रेवेन्यू था उसको पे नहीं करते। इस प्रकार से बार बार बोली लगती, उसकी बिडिंग लगती, और फाइनली जो जमींदार के जो एजेंट थे वो उसको लो रेट पर परचेज करते। फिर तीसरा है जमींदार सर्कुमवेंटेड डिस्प्लेसमेंट, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट को, जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आया तो उसको डिस्प्लेस कर दिया करते थे। बाहर का कोई व्यक्ति आकर के उनकी जमींदारी को खरीद करके कंट्रोल करना चाहा, मैनेज करना चाहते, उसका विरोध उन्होंने किया। अटैक बाय लठियाल्स, कई बार लठियालों के द्वारा अटैक भी करवाया। सो रैयत्स रजिस्टर्ड एंट्री ऑफ द आउटसाइडर्स, समटाइम्स रैयत्स आल्सो रजिस्टर्ड द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर्स। इस प्रकार से जमींदारों ने अपना रेजिस्टेंस जारी रखा।